બ્લેક બોક્સ મળી આવ્યું છે। હવે એનાથી ખ્યાલ આવશે કે આખરે આ જે પ્લેન ક્રેશ થયું છે તેમાં શું પ્લેનમાં કોઈ ખરાબી હતી અને તેના કારણે આ ક્રેશ થયું, તેના કારણે લેન્ડ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો કે નહીં તે પણ એક સવાલ છે કે એના કારણે અથવા તો એની જાતે જ પ્લેન નીચે આવવા લાગ્યું હતું। અલગ અલગ રીઝન છે, અલગ અલગ થિયરી પણ સામે આવી રહી છે, પરંતુ જે ઓથેન્ટિક જે તપાસ થશે ત્યારબાદ જ એક્ઝેક્ટ રીઝન આપણને જાણવા મળશે, કારણ જાણવા મળશે કે આ ક્રેશની પાછળનું કારણ, અસલી કારણ શું હતું। 625 ફૂટની ઊંચાઈ જે હતી તેના પર ઉડતું હતું અને જ્યારે પ્લેન પડે છે તો 58 સેકન્ડ જેટલો સમય થયો છે। હવે અલગ અલગ જે તસવીરો આવી રહી છે, અલગ અલગ જે બ્લેક બોક્સને લઈને જાણકારી આવી રહી છે, બ્લેક બોક્સ આવ્યા બાદ જે તમામ હકીકત છે ખ્યાલ આવશે, કારણ કે સામાન્ય રીતે એટીસી સાથે જે વાતચીત થતી હોય છે તે પાયલોટ તેમાં કરતા હોય છે અને જ્યારે પણ આવી કોઈ દુર્ઘટના ઘટે તો એ બ્લેક બોક્સની અંદર એ છેલ્લી રેકોર્ડિંગ પણ આવી જતી હોય છે કે જેમાં શું વાત છેલ્લે એટીસી સાથે પાયલટે કરી છે, મેડે 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 કદાચ એ કોલ આપ્યો હોય છે, એનો મતલબ એ છે કે ઇમરજન્સી છે, તકલીફ થઈ છે વિમાનમાં, પરંતુ 58 સેકન્ડની અંદર પાયલટે શું કીધું હશે એ સમજવું પણ મુશ્કેલ છે, કારણ કે પ્લેન ટેક ઓફ થયાના 20 થી 30 સેકન્ડમાં જ આ દુર્ઘટના થઈ જાય છે। પ્લેન જેવું જે રીતે 300 કલાક પ્રતિ કલાકની ગતિએ કદાચ જતું પણ હશે અને તુરંત જ તે પ્લેન નીચે આવીને પડે છે। તો દુર્ઘટના કારણો શોધવામાં બને છે ઉપયોગી આ બ્લેક બોક્સ, કેવી રીતે આ રહસ્ય ખોલશે, ટેકનિકલ ખામી, પાયલટની ભૂલ અંગે તપાસમાં ઉપયોગી થતું હોય છે આ બ્લેક બોક્સ। શું છેલ્લે વાતચીત થઈ છે, કારણ કે બે પાયલટ, કો પાયલટ પણ હશે, હવામાન કે ટ્રાફિક કંટ્રોલથી ભૂલ અંગે પણ જાણકારી મળી શકે છે। શું બર્ડ હિટ એક મોટું કારણ હોઈ શકે છે આમાં, કે શું તેને લઈને કોઈ જાણકારી હશે કે કેમ? ફ્લાઇટ ડેટા રેકોર્ડમાં વિમાનની ટેકનિકલ માહિતીનો રેકોર્ડ હોય છે, કેટલી ઊંચાઈ પર હતું, ઝડપ, દિશા અંગે હોઈ શકે છે રેકોર્ડમાં। તો આ બ્લેક બોક્સ જે છે તેનાથી જ આ સમગ્ર ઘટનાનો ખ્યાલ આવશે। એન્જિનની સ્થિતિ, રડાર અંગે પણ હોઈ શકે છે રેકોર્ડ, તેવી પણ જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે। તો બ્લેક બોક્સ મહત્વનું છે। કોકપીટ વોઇસ રેકોર્ડમાં કોકપીટમાં થતી વાતચીત રેકોર્ડ થતી હોય છે, પાયલોટ, કો પાયલોટ, તેની સાથે એક આસિસ્ટન્ટ પાયલોટ પણ હોય છે, તેઓની વચ્ચેની જે વાતચીત હોય છે તે પણ આમાં સતત રેકોર્ડ થતી હોય છે। ભલે તેઓ એટીસી સાથે વાત ન કરતા હોય, પરંતુ આ બ્લેક બોક્સની અંદર સંધ્યા સમગ્ર માહિતી હોય છે કે જે જ ખ્યાલ લાવશે હવે કે સાચેમાં થયું શું હતું, 58 सेकंड કેમની रही कालनी। अगर हम इसको दो भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन, बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था, दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ ख़त्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज़ वेरी रेयर। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि टेक्निकल फॉल्ट ऐसा क्या हो सकता है जो कि दोनों इंजन के पावर को लॉस करेगा। क्या इतने बड़े बर्ड एक्टिविटी वहाँ पर थे? वैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट में बर्ड्स बहुत हैं, लेकिन क्या वो इतने ज़्यादा थे कि एयरबस बोइंग 787 जैसे जहाज़ के दोनों इंजन को एक साथ ख़त्म कर सकता है? क्वाइट अनलाइकली, बट दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अभी खबर ये है कि पायलट ने मेडे कॉल दिया था, इसका मतलब ये है कि जो भी फेलियर था वो पायलट के कॉकपिट में दिखा था। अगर वो दिखा था दैट मीन्स कि वो टेक्निकली उसमें वो फॉल्ट नज़र आया और उसको ये लोग कॉम्बैट करते हुए एयरबॉर्न हुए। जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है कि उनका लैंडिंग गियर क्यों डाउन था और क्या फ्लैप्स के पोजीशन वही थे जिस पे कि परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया गया था। फ्लैप्स एक विंग्स के पीछे में एक डिवाइस होता है जो कि लिफ्ट को बढ़ाता है। तो जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है तो उसका फ्लैप्स टेक ऑफ पे होता है, लैंडिंग गियर डाउन होता है। जैसे ही एयरबॉर्न होता है तो लैंडिंग गियर को अप किया जाता है। वो 30 से 50 फीट के ऊपर में लैंडिंग गियर को अप करने की कार्यवाही 50 फीट से ऊपर से शुरू हो जाती है। और इस केस में लैंडिंग गियर डाउन है, पॉसिबिलिटी के एयरक्राफ्ट का इंजन पावर लॉस वाज डिटेक्टेड बिफोर हैंड। अब टेक्निकल फॉल्ट के साथ अगर कोई मिक्सअप ऑफ पायलट एक्शन हुआ है कॉकपिट में तो वो CVR और FDR ही बताएगा, लेकिन विजिबली जो नज़र आ रहा है पायलट इन कमांड जो कंट्रोल पे थे वो एयरक्राफ्ट के नोज को पिच कर रहा है ऊपर की तरफ टू कंट्रोल द फ्लाइट फ्रॉम डिसेंडिंग और कंटिन्यू क्लाइंबिंग। ये दोनों ही चीज़ नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह तो ये है कि सफिशिएंट पावर नहीं था,
या उस फ्लाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए सफिशिएंट एयर स्पीड नहीं था। एयर स्पीड का मतलब कि अगर जहाज अगर बहुत स्लो है और फ्लैप्स अगर अप है तो अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये है कि सभी चीज़ सही है और पावर नहीं है, अगेन एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर पाएगा। तो इन सारे चीज़ इतने वेरिएबल्स हैं कि किसी भी तरह का स्पेकुलेशन विल बी वो अनजस्ट होगा फॉर दी पायलट्स ऑन बोर्ड। अब कैसी स्थिति रही होगी पायलट्स के नज़रिए से कि जहाज़ जो है वो पायलट उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा है और जहाज़ नीचे की तरफ गिरा चला जा रहा है और पायलट को ये पता नहीं चल रहा है ये हो क्यों रहा है, या इंजन्स पावर नहीं डेवलप कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है इस चीज़ को गेस करना। ये सारी जो क्यों क्या कैसे हुआ, ये तो एक उसकी पूरी जब जांच होगी, हवाई जहाज़ का जो ब्लैक बॉक्स है वो जब मिलेगा और बाकी के भी जो उसके यंत्र मिलेंगे तो जरूर इसके बारे में पूरी जानकारी हमारे सामने आएगी। मगर तब तक बड़ा आश्चर्य लगता है कि हवाई जहाज़ क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद आया था, बिल्कुल सही होगा, तभी वहां आने के बाद ये फैसला हुआ पायलट का कि उसे अब लंदन के लिए तैयारी की जाए। तो कुछ उसमें वैसे कोई जानकारी अभी प्रारंभिक हमारे पास नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि विमान में या कोई और अन्य कोई बातें थी या नहीं। केवल इतना ये भी कहूंगा कि 787 ड्रीमलाइनर जो है बड़ा एक आधुनिक हवाई जहाज है और पूरे विश्व में सभी बड़ी हवाई कंपनियां हैं, एयरलाइंस हैं, ये इसको इस्तेमाल करती हैं। हजारों ड्रीमलाइनर पूरे विश्व में आज उड़ रहे हैं, हर रोज उड़ते हैं। तो हवाई जहाज के बारे में और कैप्टन भी जो हमारे जो इसमें जो थे वो बड़े अनुभवी कैप्टन जिनके पास करीब 8,500 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का और खास करके ड्रीमलाइनर का भी अनुभव रहा। तो कैप्टन भी बहुत अनुभवी थे। हवाई जहाज भी एक बड़ा एडवांस्ड हवाई जहाज है। तो इसलिए क्या कैसे हुआ ये आज अभी इसका कहना मुश्किल है, लेकिन बड़ी चिंता की बात है।